یہ ایک نارمل روٹین کا میٹر ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی جونیئر جو ہے جب آپ سے بن گیا، کیونکہ کل تک وہ آپ کو سر کہتا تھا، آج اس کی پروموشن کی وجہ سے آپ اس کو سر کہہ رہے ہوں گے۔ ابھی یہ کہہ دینا کہ جی سپر سیڈ کر دیا، نہیں سپر سیڈ نہیں کیا، یہ آرمی نہیں ہے، یہ آرمی سے ہٹ کے ایک محکمہ بنایا گیا ہے۔ یہ قیاس آرائیاں غلط ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ فوج کے انٹرنل معاملات ہیں۔ اس معاملات کے اندر فضول کی قیاس آرائیاں کر کے اور وہ عادل راجہ ٹائپ کے لوگ جو ہے وہ لوگوں کو ورغلاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جی اوہو فوج کے اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ٹھنڈ رکھیں، بے فکر رہے، فوج میں کچھ نہیں ہو رہا، سب آپس میں بھائی ہیں۔ اگر کسی کو تکلیف ہے تو وہ پھر انشاءاللہ پھر ایک اور مارکہ حق کا انتظار کر لے، پتہ چل جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم عبداللہ بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ، اتنی دیر نہ لگایا کریں یار۔ بالکل عبداللہ بھائی، آپ کا ٹائم، آپ بیزی شخص ہیں، آپ کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو آپ سے ٹائم لینا ذرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا عبداللہ بھائی، بہت سے ہم کشمیر میں معاملات ہیں، کے پی میں، بلوچستان میں، ان تمام پر گفتگو کریں گے، لیکن ایک انٹرنل ایشو آرمی کے اندر بہت سارے لوگ اس پہ ہم گوئیاں کر رہے ہیں، بہت سی چیزیں آ رہی ہیں کہ ایک جرنیل جو جنرل عامر رضا ہے، ان کو ایک بہتر پوزیشن پہ گئے ہیں، تو جو 7 جرنیل ہیں وہ سپر سیڈ ہو گئے ہیں، ان کو نکال دیا جائے گا۔ اس طرح کی بہت سی خبریں اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ان 7 جرنیل کا کیا وہ واقعی آرمی سے نکلیں گے؟ کیا صورتحال ہے؟ اصل انٹرنل کیا چل رہا ہے آرمی کے اندر اس ٹائم سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ کیوں آپ مجھے مروانے پہ تلے ہوئے ہیں؟ کالے ڈالے آپ بھجوائیں گے میرے پاس؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ دیکھیں، بہت شکریہ، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ اچھا موضوع چنا۔ دیکھیں قذافی بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ انٹرنل ایشوز ہیں پاکستان آرمی کے، ہر ڈپارٹمنٹ کے اپنے ہوتے ہیں۔ میں چند چیزیں آپ کے سامنے گوشت گزار کر دوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو جنرل عامر رضا صاحب ہیں، وہ انتہائی ایک شریف النفس اور ایک بہت ہی اچھے شخصیت کے مالک ہیں۔ 6 لانسرز ان کی ریجمنٹ ہے، جو کہ پاکستان آرمی کی آرمڈ کور کی ایک مایہ ناز ریجمنٹ ہے، اور 23rd جو او ٹی ایس ہے، آفیسرز ٹریننگ اسکول منگلہ، یہ ایک جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں اسکول بنایا گیا تھا منگلہ کے اندر، اور اس زمانے میں جو مطلب پی ایم اے کی ایج لمٹ ہوتی تھی، اس میں ذرا تھوڑی سی ایج لمٹ انہانسڈ ہوتی تھی، تو یہ آفیسرز ٹریننگ اسکول منگلہ میں بنایا گیا۔ اس میں جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بھی وہاں سے پڑھ کے آئے، اور اسی طریقے سے دیگر جرنیل، جن کے اندر ایک جنرل شاہد امتیاز صاحب بھی ہیں، جن کا تعلق 22 او ٹی ایس سے کہا جاتا ہے۔ اب جنرل شاہد امتیاز صاحب کے متعلق تو خیر بعد میں بات کرتے ہیں۔ میں آپ نے جو سوال پوچھا وہ بڑا اہم ہے کہ کیا باقی 7 جرنیل کیا استعفیٰ دے رہے ہیں یا 7 جرنیل گھر بھیجے جا رہے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی۔ دیکھیں، میں آپ کو چند مثالیں بھی دوں گا، اور آپ کی اجازت سے میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک نئی پاکستان افواج کے اندر ایک نیا ڈپارٹمنٹ کھلا ہے، اس کا نام ہے نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ، اور اس کے کمانڈر کے طور پر جنرل عامر رضا صاحب کو لایا گیا ہے۔ اور جنرل عامر رضا صاحب کا تجربہ جو ہے وہ متعدد جگہوں کے اوپر ہے، یعنی کہ انہوں نے انفینٹری بریگیڈ بھی کمانڈ کی، انہوں نے جو ہے وہ آرمڈ بریگیڈ بھی کمانڈ کی، انہوں نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کے اندر باقاعدہ چیف انسٹرکٹر بھی رہے، پڑھایا بھی، اس کے علاوہ اسکول آف آرمر کے اندر وہ پڑھاتے رہے، اور پھر نوٹنگم یونیورسٹی سے وہ گریجویٹ بھی ہیں، اس کے علاوہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کو بھی کمانڈ کیا، اور کمانڈر 4 کور بھی تعینات رہے، اور اس کے بعد پھر چیئرمین جو سی جی ایس چیف آف جنرل اسٹاف، جو کہ آرمی میں ایک بہت ہی اہم نوعیت کی اپوائنٹمنٹ ہے، یعنی کہ جتنی بھی ڈیسک جاب ہوتی ہیں، ایک تو کمانڈ ہوتی ہے، آپ نے کور کمانڈ کی، ڈیو کمانڈ کی، بریگیڈ کمانڈ کی، یونٹ کمانڈ کی، لیکن ایک ہوتی ہیں ڈیسک جابز، اور یہ ڈیسک جاب میں سب سے بہترین جاب سمجھی جاتی ہے پاکستان آرمی کے اندر، جس کے نیچے تمام پاکستان آرمی کے ڈپارٹمنٹس، جن میں آپ کہیں ایف ڈبلیو ہے، این ایل سی ہے، ڈی ڈبلیو اینڈ آر ڈائریکٹریٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، ای این سی ڈائریکٹریٹ
डायरेक्टरेट है, ये तमाम डायरेक्टरेट्स जो होती हैं ये चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के नीचे आती हैं। तो मतलब एक तजुर्बा है, ये तो मैं आपको तजुर्बा बताया उनका। तो ये एक नई कमांड है। हाँ, इस्तीफे देखने में आते हैं, माजी में मुतअद्दिद बार आए। हमने देखा कि जब अभी मौजूदा आर्मी चीफ जब बनाए गए तो उस टाइम पे जनरल वो थे, क्या नाम है, जनरल अब्बास साहब थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। इसी तरीके से और लोगों ने जो है वो इस्तीफा दे दिया था। अजहर अब्बास की बात कर रहा हूं मैं, जनरल अजहर अब्बास साहब बहुत अच्छे आदमी। तो मकसद ये है कि ये एक नॉर्मल रूटीन का मैटर होता है कि आपसे कोई जूनियर जो है जब आपके बन गया, क्योंकि कल तक था आप उसको, वो आपको सर कहता था, आज उसकी प्रमोशन की वजह से, उसके एक नए सितारे ऐड होने की वजह से आप उसको सर कह रहे होंगे। लेकिन ये बात आती है आर्मी के अंदर, ये एक नई डोमेन क्रिएट हुई है। कभी आपने सुना कि चेयरमैन जॉइंट चीफ किसी को बनाया गया? माजी में एक हमारा डिपार्टमेंट था, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जिसके आखिरी कमांडर जो थे, चेयरमैन जो थे, वो शाहिर शमशाद मिर्जा साहब थे, बड़े अच्छे आदमी थे। तो शाहिर शमशाद मिर्जा साहब जब बने थे तो क्या लोगों ने इस्तीफे दे दिए थे? नहीं, क्योंकि ये एक मुख्तलिफ चीज है, ये कमांड ही फर्क है। हाँ, अगर आर्मी की कमांड तब्दील होती और उसके अंदर 7 जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनको साइड के ऊपर करके किसी जूनियर को बनाया जाता तो वो एक और बात है। दूसरी बात जो मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब बड़ा जानने की जरूरत है, ये कहना गलत है कि सीनियर मोस्ट सीनियर मोस्ट सीनियर मोस्ट, ये गलत है। पहली बात यह है कि जब आपका सेकंड लेफ्टिनेंट से आप लेफ्टिनेंट बनते हैं तो लिeutenant के ऊपर आपकी प्रमोशन तब होती है जब आप कुछ बेसिक कोर्सेज पास करते हैं, फिर इसी तरह से कप्तान बनते हैं, मेजर बनते हैं, लिeutenant कर्नल बनते हैं, कर्नल बनते हैं, ब्रिगेडियर बनते हैं, मेजर जनरल बनते हैं, लिeutenant जनरल बनते हैं और फिर जनरल के नाम आते हैं। अब आप मुझे बताएं कि लेफ्टिनेंट जनरल तो पाकिस्तान आर्मी में बहुत सारे हैं, उसके अंदर हमारे DGI SPR साहब भी मौजूद हैं, उसके अंदर जो है वो जो इंजीनियरिंग इन चीफ जो है वो भी मौजूद है। लेकिन क्या सीनियर मोस्ट अगर ENC हो तो क्या इंजीनियर्स के ऑफिसर को आप आर्मी की कमांड दे सकते हैं? या अगर किसी आदमी ने स्ट्राइक कोर कमांड की हो, यानी कि 1 कोर 2 कोर कमांड की हो, सदर्न कमांड की हो, क्या उनका मवाजना आप उन कोर्स के साथ लगा सकते हैं कि जो कि डिफेंसिव रोल में होती हैं? तो ये मतलब चीजें फर्क आती हैं। इसलिए इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवेल्युएशन भी होते हैं, बहुत सारे और ओहदे भी होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल्स के। मैं एक और भी मिसाल दे देता हूं कि मेडिकल कोर का भी तो जनरल होता है। तो मेडिकल कोर के जो हमारे सर्जन जनरल होते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। तो सर्जन जनरल को वो सीनियर मोस्ट है इसलिए उनको आर्मी चीफ लगा दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ करता। प्रोफेशनल जो आपकी कैपेबिलिटीज होती हैं उनके ऊपर ये बात होती है। ये बात तो मतलब आपको जहन में रखनी चाहिए। ये तमहीद मैंने इसलिए बांधी क्योंकि ये लोगों का जानना, जाहिर है इसमें इंटरेस्ट भी होता है, लोगों को इल्म नहीं होता। और फिर कुछ ऐसे हमारे मीडिया वाले जिनके पीछे बैकग्राउंड नहीं होता फौजी, वो फिर आपको पता है नए नए चस्के लेते रहते हैं। हाउएवर, कमिंग टू द पॉइंट, अभी कमिंग टू द पॉइंट ये है कि जनरल आसिम मलिक साहब जो कि इस टाइम पे प्रेजेंटली DGISI हैं और 80th लॉन्ग कोर्स से इनका ताल्लुक है। और ये जो अब हमारे आमिर रजा साहब आए हैं, गालिबन अगर इनका इक्विवेलेंट देखा जाए तो गालिबन 81 लॉन्ग कोर्स बनता है। लेकिन क्योंकि ये आर्मी नहीं है, ये एक नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, एक अलहदा डिपार्टमेंट है। इसके नीचे अभी तक तो मुझे नहीं नजर आ रहा कि कोई कोर दी हो, कोई डिव दी हो, कोई ब्रिगेड या रेजिमेंट भी दी हो। ये एक ज्यादा मोर और लेस एक डेस्क जॉब है, एक ऐसा काम है जिसमें पाकिस्तान आर्मी की मुस्तकबिल के हवाले से और दुश्मन के हवाले से नई नई स्ट्रेटजीज डेवलप की जाए, नई मॉडर्न डॉक्ट्रिन जो है वो सामने लाई जाए, वॉरफेयर की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है और इंटीग्रेशन ऑफ जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज और साथ ही साथ मिसाइल कमांड, ये तमाम, और रॉकेट कमांड, इन सब को आपस में, ताकि जब खुदा न खास्ता जंग होती है तो उसके अंदर जो आपके डिसीजंस हैं वो बहुत क्विक हों और बहुत स्विफ्टली काम किया जा सके, इसको साइड पे कर दें। अब आ जाए लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब के ऊपर। अपने सोर्ड ऑफ ऑनर हैं,
अपने कोर्स को 80 लॉन्ग कोर्स को इन्होंने टॉप किया। बड़े ही जबरदस्त ब्राइट आदमी है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, बड़े ईमानदार आदमी है। अभी तक कोई उनके ऊपर इल्जाम किसी किस्म की कोई चीज नहीं है। मौजूदा DGISI हैं। अभी तो उनका टाइम है दरमियान में, अभी देखें कुछ और भी सरप्राइजेस हैं, लोग इसी के ऊपर चिल्ला उठे हैं अभी तो देखें। उसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर साहब। इनाम हैदर साहब जो है बुनियादी तौर पे इंजीनियर्स के हैं, और इन अभी फिलहाल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो NDMA है उसको कमांड कर रहे हैं, और बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। आप शायद गए भी होंगे NDMA के हेडक्वार्टर में, तो ऐसा लगता है कि आप किसी कोई अमेरिकन कोई जबरदस्त किस्म की जो जगह है उसके ऊपर आए हुए हैं, जहाँ स्क्रीन लगी हुई है, चीजें हो रही है। मीन्स के एक बहुत अच्छा काम किया। और आपको पता है NDMA की वजह से बहुत सारे खतरात टले भी हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। फिर आ जाते हैं आपके जनरल नोमान जकरिया साहब, जो कि अभी बड़े मशहूर हुए जब आपको पता है कि सिंगापुर के अंदर उन्होंने बड़ी जबरदस्त तकरीर की और भारत को उधेड़ के रख दिया, और पाकिस्तान मिलिट्री डॉक्ट्रिन को उन्होंने जो है बयान किया। तो बड़े ही प्रोफेशनल, थॉरो जेंटलमैन, और गालिबन 11 कैवलरी से इनका ताल्लुक है, और आर्मर्ड कोर के ऑफिसर हैं, प्रोफेशनल हैं, और मार्का हक में एक बहुत बड़ा किरदार था। तो और रॉकेट कमांड जो पाकिस्तान की बनाई गई है, जो पिछली दफा जब मार्का हक के बाद बनाई गई, तो उसका भी इजाफी चार्ज इनके पास है, नोमान जकरिया साहब के पास। प्रोफेशनल आदमी हैं, 80th लॉन्ग कोर्स के ये भी हैं, और इनाम हैदर साहब भी हैं। फिर आ जाते हैं जी एहसन गुलरेज साहब, वो मेरे ख्याल में 9FF के हैं, जो फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट है, पिफर की रेजिमेंट है, बड़ी जबरदस्त है। इस टाइम पे सदर्न कमांड कर रहे हैं। 2 कोर मुल्तान स्ट्राइक कोर है, ये 1 कोर भी स्ट्राइक कोर है, उसको कमांड कर रहे हैं। कमाल ऑफिसर है अनडाउटेडली। उनके वालिद भी फौज के अंदर ब्रिगेडियर थे और हयात है माशाल्लाह। बड़े नेक नामी लोग हैं, और बड़े इनके बच्चे भी फौज के अंदर है। जो लोग कहते हैं ना कि जी बच्चे जो है वो लोगों फौजियों के नहीं जाते, जर्नैलों के, तो बिल्कुल जाते हैं, ऐसी बात गलत बात है। फिर आप आ जाते हैं जनरल जफर इकबाल साहब हैं, वो भी इस टाइम पे आर्मी डिफेंस को कमांड कर रहे हैं। और फिर जनरल शाहिद इम्तियाज साहब हैं, जो कि मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, पहले 10 कोर कमांड कर चुके हैं, और 22वें OTS कोर्स से उनका ताल्लुक है। फिर एक जनरल हैं मेरे कमांडर 4 कोर जो जनरल इमदाद हुसैन शाह साहब हैं, वो कमांडर 4 कोर है इस टाइम पे। तो ये तमाम 80th लॉन्ग कोर्स से इनका ताल्लुक है। अभी ये कह देना कि जी सुपरसीड कर दिया, नहीं, सुपरसीड नहीं किया। ये आर्मी नहीं है, ये आर्मी से हट के एक महकमा बनाया गया है, जिसके अंदर उनको जनरल आमिर रजा साहब को तैनात किया गया। जनरल आमिर रजा साहब के भाई भी ब्रिगेडियर ऑफिसर रह चुके हैं, वो भी आर्मर्ड कोर के हैं, रिसाले से ताल्लुक है, 19 लांसर उनकी रेजिमेंट है, और उनके वालिद भी फौज में थे और हयात है माशाल्लाह ताला आमिर रजा साहब के। मैं मुबारकबाद देने के लिए गया था उनको, क्योंकि मेरा पुराना एक उनके वालिद साहब के साथ एक अच्छा ताल्लुक है, उनके बड़े भाई साहब से ताल्लुक है। हाउएवर देखें, ये कयास आराइयां गलत हैं, ये नहीं होनी चाहिए। ये फौज के इंटरनल मामलात है। फौज के अंदर तमाम जर्नैल जब बनते हैं तो वो प्रोफेशनलिज्म उनका एक मेरे ख्याल में ऐसा होता है जिसका हमने अमली सबूत मार्का हक के अंदर देख लिया। चाहे वो DGISI है, या वो कमांडर 1 कोर है, 2 कोर है, या 4 कोर है, या वो मिलिट्री सेक्रेटरी है, या वो जनरल इनाम हैदर है, या कोई और है, तमाम के तमाम बेहतरीन ऑफिसर्स हैं, कोई शक व शुबा नहीं है। और इस मामलात के अंदर फजूल की कयास आराइयां करके, और वो आदिल राजा टाइप के लोग जो है वो लोगों को वरगलाते हैं, बताते हैं कि जी ओहो फौज के अंदर पता नहीं क्या हो रहा है। ठंड रखें, बेफिक्र रहे, फौज में कुछ नहीं हो रहा, सब आपस में भाई हैं, सब आपस में एक दूसरे को मिलने जाते हैं, मुबारकबाद देने जाते हैं। मतलब मुझे पता है ना इस बात का कि सबसे पहले मुबारकबाद देने वाले लोग वही हैं जिनके ऊपर ये बातें की जा रही हैं कि जी वो छोड़ के जा रहे हैं, जबकि सबसे पहले मुबारकबाद देने वाले यही लोग हैं। तो अभी हो सकता है कोई वाइस चीफ आ जाए,
हो सकता है कि कोई आप अब रॉकेट कमांड है या दीगर है, मैं नहीं जानता, ये फ़ौज के इंटरनल मैटर है और हमारे फ़ील्ड मार्शल साहब इसको बखूबी जानते हैं और वो अपने मेरे ख़्याल में अपने काम में मशहूर हैं। अपना काम वो बखूबी जानते हैं। ये कह देना कि जी इतने अरसे से किसी की प्रमोशन नहीं हुई थी तो रुके हुए थे, फलाना था। ओ भाई आप लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फौज के अंदर प्रमोशन और ट्रांसफर सब कुछ अपने टाइम से हो रही हैं। सिर्फ एक नई जो हिकमत अमली है उसके तहत हो रही हैं। पहले ये बातें लोगों को ज़बान ज़द-ए-आम होती थी। अब फौज ने इसको अपना इंटरनल मैटर स्ट्रिक्टली बना के इसके ज़रा मामलात को खुफिया रखा हुआ है। ये बात है तो कुछ भी नहीं है, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई किसी को तकलीफ है तो वो फिर इंशाल्लाह फिर एक और मार्का हक का इंतजार कर ले, पता चल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, जो चहमगोइयाँ और मुख्तलिफ जिसे कहें कि एक अपने पास से कुछ खबरें और चीज़ें, कुछ नई चीज़ जो बना रहे हैं, उनके लिए कोई खबर, कोई चीज़ नहीं है। पुरअमन तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो रही हैं, आर्मी के अंदर भी और जो भी उनकी एक तरीक़ेकार है। लेकिन अब ये फ़र्क आया है कि अब बताया नहीं जा रहा, जिस तरह पहले ओपनली ये चीज़ें हो रही थी, तो कोई कहीं नहीं जा रहा, यही निज़ाम चलेगा, इसी तरह चलेगा, यही अब्दुल्ला गुल साहब हमें बता कोई रहे थे। कहता है जी मौलाना के कहने के ऊपर हो गया, कोई कहता है जी पता नहीं वहां पीटीआई के धरने की वजह से। ओ फॉर गॉड सेक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? इन चीजों का ये तो आप लोग पीछे, मतलब आप लोगों से मुराद है कुछ हमारे सहाफी अपने मिर्च मिसाले के लिए करते हैं। बाखुदा इसका 0% भी इफेक्ट नहीं होता, 0% भी। फौज अपना काम करती है, वो थॉरो जेंटलमैन और प्रोफेशनल हैं। उनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक ना उससे कोई फर्क पड़ता है। मौलाना एक नहीं 1000 बयान दे दें, पीटीआई एक नहीं 50 धरने कर दे, पहले भी कर लिए थे ना, तो क्या फर्क पड़ा भाई? मेजर जनरल से जो अपना पहले एक तरीका होता है, ब्रिगेडियर से मेजर जनरल प्रमोट हुए हैं, मेजर जनरल से फिर अब लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो बनाए जाएंगे, लेकिन टाइम से पहले बना दें। मतलब फॉर गॉड सेक, जो टाइम आ रहा है उसी पे बनाना है ना यार। अभी आप टाइम से पहले बनवा दें। अभी ब्रिगेडियर से मेजर जनरल लोग प्रमोट हुए, एक बड़ी अच्छी खासी लिस्ट है मेरे पास। मुझे पता है कि कौन कौन, कई मेरे जानने वाले हैं, मतलब जाहिर आपको पता है मेरा फौजी बैकग्राउंड है, मैं इन्हीं के साथ उठा बड़ा बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल मुझे अब्दुल्ला मालूम भाई, है। आपका तो घर है, आपका तो वो सारा एक मतलब रोज़ाना मेरी की आपकी फैमिली जो है जी, सीधी सी बात है। फैमिली है। बिल्कुल, और बिल्कुल। फैमिली के ऊपर कोई आवाज ना उठाए, सीधी सी बिल्कुल, बात। बिल्कुल। जी, तो नाज़रीन, जिस तरह के अब्दुल्ला मीर गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, कुछ बाहर मुल्कों से बैठ कर के बताया जा रहा था कि पता नहीं है आमिर रज़ा साहब को जो ये प्रमोशन दी है, इससे 7 जनरल सुपरसीड हो गए, ये हो गए, वो हो गए। लेकिन इस तरह के कोई सदाकत नहीं, कोई मामला नहीं, बिल्कुल रूटीन की चीज़ें इस टाइम चल रही हैं और जो मौजूदा फील्ड मार्शल हैं, उन्हें पता है कि किसकी तकर्री कहाँ करनी है, कौन-सा मोहरा उनको कहाँ ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म करके दिखा सकता है, तो ये रूटीन की चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल की नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी को और अब्दुल्ला मीर गुल साहब को नए दौर से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।